students, how are you? This is the chapter number 3, Parliament. This is your civics book and page number 34. So children, you can see in this picture, picture 2 and picture 3, here is our parliament. There is the two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. So first is the Lok Sabha and second is the Rajya Sabha. You can see here we call it Rajya Sabha, means the Council of States, and total strength 245 members, chaired by the Vice President of India. एंड लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल. अब ध्यान देंगे, राज्य जो पार्लियामेंट होती है वो संसद कहलाती है, ठीक है. और राज्यसभा जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जिसमें कि 245 मेंबर्स होते हैं. वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही उसके हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं. लोकसभा जो होती है वो हाउस ऑफ द पीपल कहलाती है. राज्यसभा जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और लोकसभा जो है वो हाउस ऑफ द पीपल है. और यहाँ हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा में मेंबर्स कितने होते हैं, 545 मेंबर्स होते हैं. और यहाँ पर जो स्पीकर होता है वो ही लोकसभा का अध्यक्ष होता है. तो चिल्ड्रन, हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का रोल क्या होता है. क्रिएटेड after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. These are participation by people in the decision making process and government by consent. The Parliament in our system has immense powers because it is the representative of the people. Elections to the Parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page 41. We will see after reading. Each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidates who contest elections usually belong to different political parties. Here the result of the 17th Lok Sabha elections May 9, 2019. You have to read it by yourself. Once elected, these candidates become member of parliament or MPs. These MPs together make up the parliament. Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. अब चिल्ड्रन देखिए, पार्लियामेंट जो है वो किस तरह से बनती है. सबसे पहले इसे देख लीजिए. तो जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं. 1947 के बाद हमें अधिकार मिला कि हम अपनी पार्लियामेंट बना पाएँ और हम अपने डेमोक्रेसी के जितने भी प्रिंसिपल हैं भारत में उनको लोगों के लिए बना पाएँ. तो बहुत सारे हमारे जो लीडर्स थे, उन्हें डिसीजन मेकिंग की जब पावर आई तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस उन्होंने की और हमारा संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किस तरह से सारा सिस्टम चलेगा वो सब उन्होंने तैयार किया. अब लोकसभा जो है उसमें उसे हर 5 साल में उसके लिए इलेक्शन होते हैं और कंट्री को डिवाइड कर लिया गया फॉर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में. और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, एक पर्सन होता है, इलेक्ट 1 पर्सन जो होता है वो पार्लियामेंट में फिर जाता है. जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलोंग करते हैं और जो भी जीतते हैं फिर वो पार्लियामेंट में जा कर के बैठते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं. एक बार जब इलेक्शन हो जाए तो जो कैंडिडेट होता है वो फिर एमपी कहलाता है, मीन्स पार्लियामेंट का मेंबर फिर वो बन जाता है. तो अब जो है हमें ज़रूरत क्यों है पार्लियामेंट की और इसके फंक्शंस क्या होते हैं उसे देख लेते हैं. टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs.
Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha, to have majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. The opposition in parliament is formed by all the political parties that are not part of the majority party. Coalition formed. The largest amongst these parties is called the opposition पार्टी। तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो किस तरह से बनती है, वो बनती है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, इनको मिला करके हमारी पार्लियामेंट तैयार होती है। अब लोकसभा के इलेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि हर 5 साल में होते हैं और यहाँ लिस्ट दी गई है तो आप इनको देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग जो डिफरेंट पार्टीज़ के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो जीत कर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहाँ पर पहुँच जाते हैं, पार्लियामेंट में पहुँच जाते हैं और वो एमपीज़ कहलाते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बन जाते हैं। और जैसे कि 545 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट होकर के जाते हैं लोकसभा में, उसमें से 543 जो होते हैं वो इलेक्टेड पीपल होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं। और यहाँ पर 272 मेंबर्स यदि किसी एक पार्टी में है तो उसे मेजॉरिटी पार्टी घोषित कर दिया जाता है और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं फिर वो अपोजिशन में बैठते हैं और वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। और जो फिर मेजॉरिटी वाले होते हैं वो गवर्नमेंट को बनाते हैं और फिर गवर्नमेंट उनके हाथ में रहती है, वो गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब मेजॉरिटी पार्टी घोषित होने के लिए 272 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। और अपोजिशन में बैठने वाले चाहें तो वो जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ शामिल हो सकते हैं या वो चाहें तो अपोजिशन वाली पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं, तो वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। अब जब फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन लोकसभा में जब किसी ने एक पार्टी ने, मेजॉरिटी पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली तो वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करते हैं। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जो लॉ और जो भी नियम, रूल, कानून जो भी बनते हैं उनको वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। तो जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव का चुनाव करते हैं और गवर्नमेंट को चलाने में फिर उनकी मदद लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। From the MPs who belong to her party or his party, the Prime Minister selects ministers to work with her to implement decisions. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. अब इसके बाद क्या होता है, जो जीती हुई पार्टी रहती है वो राज करती है लोकसभा में और जो MP होते हैं, जितने भी MPs होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं और उसके बाद फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो बाकी के जो MPs होते हैं उनको मिनिस्टर वगैरह बनाते हैं, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट जो MPs होते हैं उन्हें सौंप दिए जाते हैं और वो रूलिंग पार्टी करती है, मतलब जिसकी मेजॉरिटी होती है। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as coalition government. अब जो थर्ड फंक्शन है वो है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। लॉ मेकिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का और इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन पीपल होते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।